Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start with आज हम start करने वाले हैं Citizens Charter से, ठीक है? Today we are going to start with Citizens Charter. So let's start the class. क्लास शुरू करते हैं. Now Citizens Charter ना it's very important. ये जो है टॉपिक ये काफी इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 के परस्पेक्टिव से. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीएस पेपर 2 द गवर्नेंस पोर्शन इन द सिलेबस इट टॉक्स अबाउट द सिटीजंस चार्टर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास शुरू करते हैं. बिफोर वी स्टार्ट द क्लास it's important for you to know that the class PDFs are uploaded on my Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. The link is also given below in the description box. Okay, and another important announcement by Unacademy. Unacademy is launching Unacademy CSE Mentors Workshop, wherein the topic that is going to be discussed is how far science and religion can go together. ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन December 18th at 5 PM. शाम को 5 बजे ये क्लास कंडक्ट होगी December 18th को, एंड इट्स अ फ्री क्लास. Now Devdutt Patnaik sir, he is India's leading mythologist, speaker, illustrator and author. I personally am a very big fan of Devdutt Patnaik sir when it comes to Indian mythology, right? So he can put the events up with ease in a very simplistic manner, and he also makes sure that illustration is taken care of in his books. So he is going to be discussing how science and religion are linked together, and he is a very famous mythologist, very famous mythologist. He has done many podcasts on the mythological topics, right? So he is going to discuss the relation between science and religion, how they can go together, how they can work hand in hand, and how they are related also. ऐसा नहीं है कि सब कुछ बस जादू है, ऐसे ही हो जाता है, नहीं. He has given scientific reasons also why we can consider some portion in the mythology as real. Okay, so he will be discussing this topic with our leading top educator on Unacademy, who is Sharad Tripathi sir. तो शरद त्रिपाठी सर के साथ ये डिस्कशन होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एस्से. ये जो टॉपिक है ना, ये आपके एस्से के लिए और इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी ऑल नो दैट कल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर यूपीएससी सीएसई सिलेबस ऑल्सो, राइट? You can use this code ARPITA10 to unlock your plus experience for free and start learning from the best. This is going to be a very wonderful class. आप इस कोड को यूज करके इस क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो. The link is given below in the description box. Description box में आपको इस क्लास का लिंक भी दिया हुआ है. So do not forget to watch this live session for free on 18th of December at 5 PM. Okay, let's start the class. So let's start the class. क्लास शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले. वी आर ऑन द सिटीजंस चार्टर टॉपिक. ये हमारा आज का टॉपिक है, सिटीजंस चार्टर. जब बात करते हैं हम चार्टर की, व्हेन वी टॉक अबाउट द टर्म चार्टर. सो ऑल्सो वन मोर अनाउंसमेंट, प्लीज मेक नोट साइमल्टेनियसली इन द क्लास. जो मैं रनिंग नोट्स बनाने वाली हूँ ना, आप भी उसको फटाफट से नोट डाउन कर सकते हैं. रिविजन में इट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, so when we talk about the word charter, this word first came into our understanding, into our notice when we studied the modern Indian history. जब आपने modern Indian history पढ़ी होगी ना, तब ये word आया होगा दिमाग में, that the East India Company, right? East India Company acquired the trading charter from the Queen Elizabeth I. Right, to trade in India, East India Company got the charter from Queen Elizabeth I. ये आप सभी को पता है, each one of you know about it, right? तो जब हम चार्टर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट चार्टर यू कैन से इट्स अ लेजिस्लेटिव पेपर. ये एक तरीके का लेजिस्लेटिव पेपर होता है जो आपको किसी प्रकार की राइट्स प्रोवाइड करता है. द लेजिस्लेटिव पेपर विच प्रोवाइड्स यू सम काइंड ऑफ राइट्स, दैट इज नोन एज चार्टर. उसको हम चार्टर बोलते हैं. अब यहाँ बात आती है, ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सिटीजंस चार्टर. सो सिटीजंस चार्टर इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. पहली बार इसको भारत में इंट्रोड्यूस किया गया इन 1990s. क्लियर? एंड दीज चार्टर्स दे रिप्रेजेंट, राइट इट डाउन, दे रिप्रेजेंटेड अ लैंडमार्क शिफ्ट in the delivery of public services, ठीक है.
सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिटीजन्स चार्टर। ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि एक लेजिस्लेटिव पेपर है जिसने पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी में सिटीजन्स तक जो पब्लिक सर्विसेज पहुंचती है उसमें एक लैंडमार्क हिस्टोरिक शिफ्ट लेकर आया, ठीक है। एंड ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1990 के दशक में। बट व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ दिस चार्टर? अब इस चार्टर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? सो यू कैन से इट्स बेसिकली अ सेट ऑफ कमिटमेंट्स, just write it down, it's basically the set of commitments which is made by organizations, regarding the standards of service which it delivers. For example, अभी कोविड के पीरियड में जो भी आपको पिज्जा या जो भी कुकिंग आइटम्स डिलीवर हो रही हैं वो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं ऐप पे इंफॉर्मेशन दैट वी आर फॉलोइंग ऑल द WHO गाइडलाइंस, वी आर सैनिटाइजिंग द हैंड्स ऑफ द राइडर, वी आर चेकिंग द टेम्परेचर ऑफ द राइडर एटसेट्रा। जब आप जोमेटो से या स्विगी से कुछ ऑर्डर करते हो या अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हो, राइट नाउ इन दिस कोविड एरा व्हेन यू ऑर्डर एनीथिंग ऑनलाइन, दे ऑल्सो टेल यू ऑन द ऐप इटसेल्फ दैट व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द WHO गाइडलाइंस दैट दे आर फॉलोइंग, दैट दे आर अबाइडिंग बाय while they are delivering the service to you, right? So that is known as charter. उसको हम बोलते हैं चार्टर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है उसके स्टैंडर्ड्स जब आपको लिस्ट आउट करके बताती है वो हम बोलते हैं सिटीजन चार्टर, उसी को हम बोलते हैं सिटीजन चार्टर। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है? सो दीज आर सिटीजन चार्टर। ये तो हो गया आपका सिटीजन चार्टर। नाउ व्हेन वी से सिटीजन चार्टर यानी कि सिटीजन नागरिक का चार्टर, तो दैट मीन्स द एम्फोसिस विल बी ऑन, फोकस किस पे होगा? एम्फोसिस विल बी ऑन सिटीजन्स, ठीक है, सिटीजन्स पे होगा एज कस्टमर्स। तो सिटीजन्स यहाँ पर कस्टमर्स का रोल निभा रहे हैं तो फोकस सिटीजन्स पे होगा, ठीक है। एंड द फोकस विल बी इंश्योर्ड, write it down, it will be on citizens by ensuring that public services are responsive to the citizens they serve, यानी कि जो पब्लिक सर्विस, जिन सर्विसेज को वो सिटीजन्स को दे रहे हैं, पब्लिक सर्विसेज शुड बी रिस्पॉन्सिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेजोन से आप कुछ मंगवा रहे हो तो राइडर का नेचर, राइडर के आपके प्रति जो व्यवहार है, बिहेवियर है वो, ठीक है, इन सब की गारंटी अमेजोन लेता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर राइडिंग बाय अ कैब, यानी कि आप कैब से ट्रैवल कर रहे हो, द बिहेवियर ऑफ द राइडर, right now in the COVID era, the temperature of the rider or the driver or the sanitization of the car and the driver, everything will be ensured by the service provider. Service provider make sure करेगा कि ड्राइवर के नेचर से लेके ड्राइवर के सैनिटाइजेशन तक, कार सैनिटाइजेशन तक सब कुछ सही होना चाहिए, बिकॉज द सिटीजन्स दैट वी आर सर्विंग देज आर आर कस्टमर्स एंड इनके लिए सब कुछ ऑन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी नथिंग विच कैन बी डिससैटिस्फैक्टरी टू द कस्टमर, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो कि कस्टमर को डिससैटिस्फाइड रखे। वी हैव टू टेक वी हैव टू शिफ्ट आवर अटेंशन टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द कस्टमर, towards what the customer wants, what the customer really craves for in a service that he is taking. अगर आप कुकिंग की सर्विस, मील्स की सर्विसेज ले रहे हो जोमेटो के थ्रू, स्विगी के थ्रू, तो हमें मेक श्योर करना है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस राइडर के साथ और फूड के साथ अच्छा होना चाहिए। टाइमली सर्विस डिलीवरी शुड बी देयर, और दीज आर रिटन इन द सिटीजन्स चार्टर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को? तो जल्दी से बताएं। Now when we talk about citizens charter, जब हम citizens charter की बात करते हैं, over here there are two visions. citizens charter को बनाने के पीछे ना दो visions होते हैं, ठीक है, या दो goals होते हैं। You can say it comprises of two things. Okay, first is known as vision. First को हम बोलते हैं vision. Second is known as mission. Okay, first is mission. Second is vision. Vision means to provide satisfaction to customers. ये तो हो गया आपका vision. To make sure that we are attracting long term customers. ऐसा ना हो कि कस्टमर आज आए और कल गुस्सा होकर चला जाए। हमारा विजन होगा कि हम कस्टमर्स को ज्यादा समय तक अपने पास रखें। आवर विजन विल बी टू कीप कस्टमर्स विद अस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मिशन विल बी, मिशन क्या होगा
टू प्रोवाइड वर्ल्ड्स बेस्ट सर्विसेज, यानी कि इसी फील्ड में, ठीक है, इसी फील्ड में और भी कंपनीज काम कर रही हैं, और भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, बट हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारी सर्विस के आगे किसी की सर्विस खड़ी ना हो सके. वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर सर्विसेज स्टैंड आउट फ्रॉम दी अदर ऑर्गेनाइजेशंस, फ्रॉम दी अदर पीपल ऑफरिंग द सेम सर्विसेज. बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट फूड ऑफरिंग सर्विस, जोमैटो एंड स्विगी आर कॉम्पिटिटर्स. जोमैटो भी वही काम कर रहा है, स्विगी भी वही काम कर रहा है, बट जोमैटो की सर्विसेज ज्यादा बेहतर होती हैं स्विगी की सर्विसेज से. तो ये आपका मिशन का पार्ट होता है. दिस इज अ पार्ट ऑफ मिशन दैट यू आर. फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन, आप फ्लिपकार्ट को देख लो और अमेजॉन को देख लो. अमेजॉन इज द लीडिंग कंपनी एज कंपेयर टू फ्लिपकार्ट. अमेजॉन की सर्विसेज बहुत ज्यादा अच्छी हैं, ठीक है. वहीं आप स्नैपडील भी है हमारे पास, वी हैव स्नैपडील ऑल्सो, ठीक है, बट द सर्विसेज ऑफ अमेजॉन दे स्टैंड आउट. अब तो पेटीएम की सर्विसेज भी आ गई हैं, ठीक है. क्लियर हो रही है बात यहाँ तक सभी को? सो दिस इज द मिशन. ये हो जाता है मिशन कंपनी का, ठीक है. पॉइंट्स क्लियर? ओके. सो व्हेन वी लुक एट सिटीजन्स चार्टर, जब हम बात करते हैं सिटीजन चार्टर की, सिटीजन्स चार्टर इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस सर्विस कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और सर्विस प्रोवाइडर्स towards providing quality high standard service including mechanism for grievance redressal also. For example, in Zomato if you are ordering food, अगर आप फूड ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, अगर वो फूड सही नहीं है या पैकेजिंग में कोई दिक्कत है, यू विल नॉट बी रिफंडेड. आपको रिफंड नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट इट्स एन एक्सट्रीम केस. मान लो कोई बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम केस है, उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आपको जबरदस्ती रिलीजन के अगेंस्ट कुछ भेज दिया है, उस केस में अगर सीरियस प्रॉब्लम है तो रिफंड हो सकता है. दैट टू 1% चांसेस आर देयर. But if you're not satisfied with the performance, they will not refund you back. For example, if by chance you have ordered something from Amazon, गलती से ऑर्डर कर दिया कुछ Amazon से जो आपको नहीं चाहिए, you can return it back, ठीक है, you will be given your refund. क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? तो these are grievance redressal mechanism. For example, if you are going through a cab, अगर आप एक कैब के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो, traveling through a cab, if you're not satisfied with the performance, they are not going to offer you refund. ठीक है, मान लो कार की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, आप यू कैन कंप्लेन, राइट, यू कैन फाइल योर कंप्लेन, बट यू विल नॉट बी गिवन रिफंड इन दैट केस. ठीक है, सेम थिंग अगर हम फूड की बात करें, रिफंड नहीं मिलेगा. सो योर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म शुड बी सो स्ट्रॉन्ग दैट द कस्टमर नेवर कैन फाइंड एनी रीजन फॉर कंप्लेन. जैसे कि इस वक्त अमेजॉन को देखेंगे, इट्स ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इज वंडरफुल. मान लो कोई प्रोडक्ट आप मंगाते हो और प्रोडक्ट सही नहीं आता, इफ यू थिंक द प्रोडक्ट इज डैमेज और समथिंग, यू विल बी रिफंडेड. यू कैन रिटर्न द प्रोडक्ट विद इन 30 days. 30 days का पॉलिसी है. फॉर एग्जाम्पल एप्पल, इफ यू ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम एप्पल, देर इज अ 60 day विंडो. अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, फिर ऑनलाइन ऑर्डरिंग एनीथिंग, देर इज अ 60 day विंडो. यू कैन रिटर्न दैट प्रोडक्ट इफ यू आर नॉट हैप्पी विद इट विद इन दिस 60 days. ठीक है, यू विल बी रिफंडेड बैक, आपको रिफंड कर दिया जाएगा. दिस इज द प्रॉपर ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म विच अ कंपनी शुड फॉलो व्हेन इट इज ऑफरिंग सर्विसेज टू द कस्टमर. ठीक है, बिकॉज विदाउट दैट द कस्टमर विल नेवर कम बैक टू यू. अगर आपके पास ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म सही नहीं है कि आपकी कंप्लेंट्स को देखा जाएगा, समझा जाएगा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्या होगा, कस्टमर लौट कर कभी वापस नहीं आएगा. यू विल लूज कस्टमर्स इन दैट केस. So, Citizens Charter work on the principles of good governance. Citizen Charter जो है ये good governance की principle पे काम करता है. That means it should be transparent, accountable and citizen friendly. ठीक है, good governance के principle क्या होते हैं? Transparency, accountability, responsibility. These are the principles now of good governance and satisfying the citizens. So in that case, Citizen Charter also has the same principles. It also works on the same principles. Transparency should be there. You should know from that you are purchasing a particular good from which seller. जैसे कि for example in Amazon when you purchase anything, just notice below the product there are information which is written from which seller you are purchasing that product. And different sellers they offer different price for the same product. एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सेलर अलग अलग प्राइस ऑफर करते हैं. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसपेरेंसी इज मेंटेन्ड. आप कंपेयर कर सकते हो, यू कैन कंपेयर द प्राइसेस. Same thing goes with Zomato also. There are different restaurants offering the same meals, so you can compare the price of the meals. Okay, so that is why this is known as transparency. जब openness होती है, आपको पता है आप कहाँ पैसा, कितना पैसा आप दे रहे हो, कौन सा सस्ता आइटम है जहाँ पैसा लगा रहे हो. ठीक है,
Then accountability. In Amazon also, if the product is damaged, they have a feedback window. उनके पास एक फीडबैक विंडो होती है. इफ यू रिसीव अ डैमेज प्रोडक्ट, यू कैन राइट अबाउट इट. दे विल आस्क यू थ्रू मेल इफ यू आर हैप्पी और satisfied with the product or not. Okay, same thing goes with Zomato also. There are stars that you can give. अगर आप satisfied हो तो पूरे 4 stars दे दो, नहीं हो तो 2 stars दे दो, रिव्यू दे दो. Swiggy also, right? Even Flipkart also. Okay, and then citizen friendliness होना ही चाहिए. The rider should be friendly. राइडर को प्रॉपर ट्रेनिंग दो, जो जोमेटो से खाना लेकर आपके लिए आ रहा है या अमेजोन से चीजें लेकर आ रहा है. ठीक है, क्लियर हो गई बात. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सिटीजन्स चार्टर, जब हम सिटीजन्स चार्टर की बात करते हैं, इट्स अ वॉलंटरी एंड रिटन डॉक्यूमेंट दैट स्पेल्स आउट द सर्विस प्रोवाइडर्स एफर्ट्स टेकन टू फोकस ऑन देयर कमिटमेंट टू प्रोवाइड बेस्ट सर्विसेज टू यू. तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, वॉलंटरीली रिटन डॉक्यूमेंट. नोबडी फोर्सेस द कंपनी टू राइट दिस डॉक्यूमेंट. इट्स अ वॉलंटरीली रिटन डॉक्यूमेंट. And in this document they provide what efforts the service provider have taken to fulfill your need. सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं आपकी हर नीड को फुलफिल करने के लिए. ठीक है, and it includes how citizens can redress any grievance. For example, if you purchase any product from Apple, आप Apple से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, ठीक है, so with the product you will get a booklet also. आपको एक छोटी सी पतली सी बुकलेट भी मिलेगी. So in case you are having any complaint with the product, there are toll numbers also which are mentioned on the booklet through which you can file your complaint. तो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो उसके साथ एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के साथ बुकलेट आती है. बुकलेट में टोल नंबर दिया होता है कि कोई कंप्लेन हो तो इस पे आप कॉल कर सकते हो. सो दे विल गाइड यू हाउ टू रिड्रेस योर ग्रीवेंस. It includes what the citizens can expect. Same thing, the booklet which comes, right? It has the functions of the product that you have purchased. The concept is that charter preserves the trust between service provider and citizens. तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, आप कोई मोबाइल खरीद रहे हो जो उसके साथ आपको यूजर मैनुअल आता है ना, वही सिटीजन चार्टर भी होता है. द यूजर मैनुअल दैट यू गेट इज ऑल्सो द सिटीजन चार्टर. इट टॉक्स अबाउट द वारंटी, द गारंटी, द टोल नंबर्स वेर इन यू कैन फाइल योर कंप्लेन्स, the feature of the product, how to start the product, everything is written in that user manual. तो हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं. ठीक है, what do we do? We just throw away the booklet. ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ पर. तो उसको फेंकना नहीं है, वो सिटीजन्स चार्टर है. दैट इज अ सिटीजन्स चार्टर. ठीक है. Now the concept of a citizens charter was started by former British Prime Minister John Major in the year 1991. This point is important for prelims. ये जो पॉइंट है ना, ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि सिटीजन्स चार्टर का कॉन्सेप्ट किसने स्टार्ट किया था. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने, जॉन मेजर, इन द ईयर 1991. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगनिंग दैट सिटीजन्स चार्टर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1990s, okay, by the British Prime Minister, and it was started as a national program intended to improve the quality of public services, and in 1998 UK the concept was renamed as Services First. तो हुआ क्या, 1991 में ये स्टार्ट हुआ सिटीजन्स चार्टर पब्लिक सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए, और 1998 में आकर ये जो कॉन्सेप्ट था सिटीजन चार्टर, इसको रीनेम किया गया. इट वाज सर्विसेज फर्स्ट. दैट मीन्स द गवर्नमेंट मेड अस अंडरस्टैंड दैट वी आर फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द सर्विसेज. हमारा फोकस, पूरा ध्यान इसी पे है कि हम सर्विसेज को इंक्रीज करें एंड इम्प्रूव करें. बिकॉज इफ सर्विसेज आर इम्प्रूव, दे आर प्रायोरिटाइज्ड, citizens will be satisfied naturally. अगर सर्विसेज बेस्ट है तो सिटीजन नेचुरली सेटिस्फाइड होंगे. यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन्स चार्टर. सिटीजन्स चार्टर के कौन से प्रिंसिपल है. ठीक, देखो, सबसे पहले हमने ब्रॉड प्रिंसिपल्स देखे, ब्रॉड पिलर्स ऑन विच सिटीजन चार्टर इज वर्किंग. ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन फ्रेंडलीनेस. वी एक्सप्लेन दिस, वी अंडरस्टूड दिस. Now what are the other originally framed principles? जब ये कॉन्सेप्ट 1991 में निकला था तो उस वक्त कौन से प्रिंसिपल्स थे. What were the principles in 1991 which were disclosed when we talk about citizens charter? First is quality, because it focuses on services first. ये बात करता है better services की. It talks about better services. So first principle should be quality. If the quality of the product is good, अगर प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बढ़िया है, प्रॉपर है, तो the customer will already be, usually he will be or she will be satisfied. क्वालिटी ही खराब है तो आप लोग क्यों यूज करोगे. Why will you use a product whose quality is low or average? So first is improving the quality, service quality. And service quality means that till the time the product is ordered
फ्रॉम दैट टाइम टिल द टाइम इट इज डिलीवर्ड एंड देन आफ्टर यूज जो होता है इस प्रोडक्ट का, दैट शुड ऑल्सो बी कवर्ड इन क्वालिटी. सेकेंड इज चॉइस. नाउ व्हेन यू सी Amazon, जब आप Amazon को देखते हो, व्हेन यू सर्च टी शर्ट यू विल गेट 1000+ चॉइसेस. Amazon में आप सर्च करो टी शर्ट तो आपको 1000 से ऊपर टी शर्ट्स दिख जाएंगी. टी शर्ट्स ऑफ ऑल साइज, मीडियम, स्मॉल, XL, XXL, XXL, लार्ज, राइट. तो आप यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, चॉइस ऑप्शन. देन दे हैव प्राइस ऑप्शन ऑल्सो. यू कैन परचेज टी शर्ट बिलो 500 और बिलो 200 और above 500 और इन द प्राइस रेंज ऑफ 500 to 1000, 1000 to 2000. तो आपके पास प्राइस रेंज भी है. यू हैव द प्राइस ऑप्शन ऑल्सो ऑन Amazon. देन यू हैव ऑप्शन ऑफ कलर्स ऑल्सो, साइज ऑप्शन ऑल्सो, कलर ऑप्शन ऑल्सो, प्राइस ऑप्शन ऑल्सो, कंपनी ऑप्शन ऑल्सो, ब्रांड ऑप्शन भी होता है. So you have thousands of choices, which are given on Amazon, which makes it easy. आपके लिए easy हो जाता है because if you are targeting a certain price range, you can easily purchase any t-shirt in that price range. मान लो आपका बजट 500 से कम है तो आप उस रेंज में टी शर्ट खरीद सकते हो. मान लो आपका बजट 1000 से ज्यादा है, ब्रांडेड कपड़े खरीदने आप वो भी खरीद सकते हो. So quality should be improved, service quality should be very good. Then there should be maximum choices because if there are many choices, citizen can easily find their category of product. अगर ज़्यादा choices होते हैं तो अपनी category, अपने हम हिसाब से, अपने budget के हिसाब से हम product खरीद सकते हैं. Then standards. Now standards have to be followed. ये नहीं हो कि 500 से कम की जो चीज़ ले रहे हो वो बेकार ही होनी चाहिए. ठीक है. Even if you're purchasing a product which comes below ₹500, right, it falls in that category. That does not mean that the standard can be violated. ऐसा नहीं होना चाहिए. Standards should be maintained. अगर if standards are not met, then nobody will be willing to purchase goods from your platform because obviously standard सोच कर ही लोग पीछे हट जाएंगे कि Amazon से क्या खरीदे, स्टैंडर्ड ही बेकार है. ठीक है. Standard should be very high. In that case, the customer indirectly can also be motivated to exceed his budget. Indirectly क्या होता है, स्टैंडर्ड बढ़िया होते हैं ना तो हम अपने बजट का भी ध्यान नहीं देते कभी कभी. ठीक है. Then going on to the value, next principle, taxpayers money. ठीक है. तो whatever you are purchasing, it should be value. It should be holding a certain value. ठीक है. तो आपको पता है कि आप Amazon अगर हमारी कंट्री में ऑपरेट कर रहा है, उसे पता है कि यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए एंड यहाँ ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स पेयर्स के पैसे की जरूरत है. इफ गवर्नमेंट वांट टू allow certain companies to work over here, to work our resource, to use our resources, our people, our electricity, etc., then they need to think about the taxpayers also. ऐसा ना हो कि Amazon की क्वालिटी ऐसी हो या प्रोडक्ट्स ऐसे हो जो टैक्स पेयर के आप कह सकते हो एक्सपेक्टेशन से परे चले जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो टैक्स पेयर्स एक्सपेक्टेशंस एंड नीड्स हैव टू बी मेट. उनके पैसों के, उनके टैक्स के एक्सपेंस पे कोई काम नहीं होना चाहिए. देन अकाउंटेबिलिटी at the level of individual and the organization, accountability should be there. If let's say Ola says, Ola announce करता है, if Ola announces that we are not accountable for the behavior of our drivers, then nobody is going to use Ola cab, right? अगर ओला किस दिन अनाउंस करती है कि भाई हमारे ड्राइवर का क्या बिहेवियर होगा लड़कियों के साथ, हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है भाई. ठीक है. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वी आर नॉट अकाउंटेबल फॉर दैट. सो विल यू यूज ओला कैब? बीइंग अ गर्ल, अगर ओला अनाउंस करे कि हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ड्राइवर की, तो क्या एक लड़की होने के नाते आप ओला कैब में बैठोगे? कभी नहीं बैठोगे. ओनली व्हेन ओला कैब सेज दैट वी हैव एन ऑप्शन टू पनिश द पर्सन, राइट, और टू रिमूव द पर्सन हु इज of bad character or who has bad reputation or bad behavior with the passengers, only then you will use the cab. plus अगर इनके पास redressal mechanism है कि अगर गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर किसी तरीके की गलत हरकत करता है, आप उसी वक्त कंप्लेन कर सकते हो. immediately you can report that behavior of the driver to the company. if that redressal mechanism is in place, only then you will use the service. if let's say Amazon says if you have purchased the product, we are not going to take it back, रिटर्न पॉलिसी नहीं है, देयर इज नो रिटर्न पॉलिसी, विल यू यूज Amazon? नो, बिकॉज यू विल बी कंफ्यूज्ड. व्हाट इफ द प्रोडक्ट कम्स इन डैमेज्ड फॉर्म? दे विल नॉट टेक इट बैक, हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा. ठीक है. सो अकाउंटेबिलिटी शुड बी देयर एट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल लेवल. देन ट्रांसपेरेंसी इन रूल्स, स्कीम्स, प्रोसीजर्स एंड ग्रीवेंसेस. द यूजर मैनुअल दैट यू गेट, it is not just a user manual because it comes with the guarantee card also.
अगर कोई गारंटी कार्ड नहीं है तो आप कोई प्रोडक्ट नहीं लोगे. फॉर एग्जाम्पल यू आर परचेजिंग अ गीजर ऑनलाइन, इफ इट हैज नो गारंटी कार्ड यू विल नॉट परचेज इट. अगर उसके साथ 1 साल की वारंटी नहीं आ रही है, 2 साल की वारंटी नहीं आ रही है तो आप नहीं खरीदोगे. भाई खराब हो गया तो फिर पैसे लगेंगे. ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर. द कंपनी शुड बी ओपन अप फॉर देयर रूल्स, स्कीम्स, प्रोसीजर्स एंड ग्रीवेंसेस. दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन्स चार्टर. यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये तो बात हो गई बेसिक प्रिंसिपल्स की. नाउ व्हाट अबाउट द सिटीजन्स चार्टर इन इंडिया? अब भारत में जो सिटीजन्स चार्टर है उसका क्या? सो इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन्स चार्टर वाज फर्स्ट अडॉप्टेड एट कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन 1997 इन दिल्ली. दिल्ली में ना 1997 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था चीफ मिनिस्टर्स का ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस वेयर दिस टॉपिक was talked about, it was discussed and it was first adopted. So major outcome of the conference was decision to formulate citizens charter by central and state government. एक decision लिया गया that now the central and state government they are going to prepare citizens charter. Now for preparing citizens charter you have to prepare a list. What services you are going to provide, how you are going to provide the services, how you are going to solve the problems and challenges associated with that services of the customers. आप कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, क्या क्या चैलेंजेस उसमें आ सकते हैं जो आप सॉल्व करोगे, सिटीजन्स को कैसे सेटिस्फाई करोगे. सो major result of this conference was that all the state, central and state governments they will sit and formulate each and every point on citizens charter. And the charters were mandated to include service standards. That means इसके अंदर पहला पॉइंट आएगा कि आपकी सर्विसेज का स्टैंडर्ड क्या होगा. व्हाट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स विल योर सर्विस हैव. देन टाइम लिमिट दैट पीपल कैन एक्सपेक्ट टू बी सर्व्ड, यानी कि अगर कोई सर्विस लॉन्च होती है कंट्री में कितने टाइम में लोगों तक पहुंचेगी. फॉर एग्जाम्पल वैक्सीनेशन. ठीक है, दे आर प्रिपेयरिंग अ चार्टर ऑन कोविड-19 वैक्सीनेशन राइट नाउ. येस और नो, अग्री करते हो कि इस वक्त वैक्सीनेशन के ऊपर एक चार्टर बन रहा है. that how will we implement this vaccination, distribute it in the country, हम कैसे किस फेज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, how will it reach to the village area, how will it reach to the other people of the country, in what manner, in what phases. Okay, so in what time it will reach to the people, कितने टाइम में लोगों तक पहुंच जाएगी, ये सारे डिस्कशन हो रहे हैं. तो सेकंड पॉइंट इज द टाइम लिमिट दैट द पीपल कैन एक्सपेक्ट टू गेट द सर्विसेज. थर्ड इज मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसिंग ग्रीवेंसेज. इफ somebody has any issue with the vaccination, then how you are going to solve that challenge. मान लो वैक्सीनेशन से रिलेटेड कोई इशू आता है. फॉर एग्जाम्पल in some places there are no proper mechanism to implement the vaccination drive or to provide them the vaccination, then how you are going to solve it. मान लो कहीं जोग्राफिकल इशू आता है, टेरेन इतना रफ है कि आप वहां तक पहुंचा नहीं सकते लोगों तक वैक्सीनेशन, तो कैसे पहुंचाओगे. So there should be grievance redressal mechanism also beforehand. सर्विस प्रोवाइड करने से पहले ही आपके दिमाग में ये प्लान आ जाना चाहिए कि मान लो कोई प्रॉब्लम आई तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे. And this is third. Then fourth is provision for unbiased scrutiny by consumer or citizens group. That means we will take feedback also from the citizen and we will not force them to give us positive feedback. No, if they have negative feedback, we will also take it into account. अगर मान लो उनका negative feedback भी है, criticism भी, हम वो भी अच्छे से पढ़ेंगे, लेंगे, समझेंगे. We will not force them to just give their positive feedback. These are the 4 points which are kept in mind while forming citizens charter in India. ये 4 points दिमाग में रखते हुए citizen charter को लिखा जाता है. समझ आ रही है बात? So citizens charter, once it is prepared, it is operationalized, formulated and coordinated by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances. ARC की reports आपने सभी ने सुनी होगी. How many of you have heard about the ARC reports? GS paper 2 में पढ़ने के लिए कहा जाता है. It is important for GS paper 2. When you are preparing GS paper 2, you need to start reading the ARC, right? ARC are Administrative Reform Committee reports. Okay? तो ARC reports जो निकलती है ना, उसके अंदर भी citizens charter से related ही points आते हैं हमेशा. We are going to study that also. Okay? तो when we talk about citizens charter components, जब हम इसके components की बात करते हैं, a good citizens charter should include the following details. First, what is the organization's vision and mission? देखो हमने vision और mission पढ़ा था ना. Over here we studied mission and vision. Okay? So always remember, हमेशा याद रखना,
whenever we study about a good citizen charter, first thing that we should look is the mission and vision of the organization. गवर्नमेंट का मिशन क्या है, गवर्नमेंट का विजन क्या है, ये हमें पढ़ना होता है सबसे पहली चीज. सेकेंड इज a business carried out and other such details of the organization. That means what is the business that they are carrying out. For example Amazon है तो Amazon क्या देता है, सर्विस डिलीवरी के ऊपर फोकस करता है. इट फोकसेस ऑन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, इसका विजन मिशन क्या है, डिलीवर करना. वट एवर यू वॉन्ट एट योर डोर स्टेप्स इट डिलीवर्स दैट टू यू. आप जो भी अपने कंफर्ट लेवल, घर के कंफर्ट लेवल पे मंगाना चाहते हो आराम से आपको डिलीवर करता है. एनी बुक दैट यू वॉन्ट, ठीक है, क्लियर, या फिर आपको कोई कपड़े खरीदने हैं या कोई मील खरीदना है. चलो, सो ओवर हियर द सेकेंड पॉइंट इज, फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशंस विजन एंड मिशन. सेकेंड इज द बिजनेस दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज कैरिंग आउट. बिकॉज अगर आपको कोई बिजनेस, कुछ सर्विसेज चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन से, आपको उसके बिजनेस को समझना पड़ेगा कि भाई जो मैं चाहता हूँ वो ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे दे पाएगी या नहीं. देन एक्सप्लेन हु आर सिटीजन्स एंड क्लाइंट्स. सिटीजन्स कौन है, क्लाइंट्स क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. हु आर द क्लाइंट्स. स्टेटमेंट ऑफ सर्विसेज, दैट मीन्स क्वालिटी. यूजर मैनुअल जो आप कहते हो ना, यूजर मैनुअल, वही आपका हो जाता है स्टेटमेंट ऑफ सर्विसेज. द यूजर मैनुअल दैट यू गेट, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ सर्विसेज. ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जो टोल नंबर आपको दिया जाता है. इफ यू हैव एनी कंप्लेन यू कैन फाइल इट ऑन यूजिंग दिस टोल नंबर. एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सिटीजन्स और क्लाइंट्स, व्हाट द कंपनी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द सिटीजन्स and what the citizens expects from the company. Both of them should be listed कि citizens या clients को company से क्या चाहिए. And additional commitments like amount of compensation. अगर मान लो किसी तरीके का failure हुआ, कोई damage हुआ product में, तो हम आपको refund भी कर सकते हैं. What kind of compensation we are going to provide to you. ठीक है, and that citizen charter should be written in a very simple language so that citizens can understand it. मान लो आप बिल्कुल हाई फाई लैंग्वेज में लिख रहे हो, कॉम्प्लेक्स लॉ लैंग्वेज में लिख रहे हो कि सिटीजन्स बेचारे समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो चार्टर गुड चार्टर नहीं कहलाया जाता. अ गुड सिटीजन्स चार्टर इज अ चार्टर दैट इज इजिली अंडरस्टैंडेबल बाय द सिटीजन. ओके, क्लियर, एंड विच इज ओके दैट इज रेगुलरली अपडेटेड ऑल्सो. वो सिटीजन चार्टर जो कि अच्छी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, रेगुलरली अपडेट होता है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस और डिलीवरी की बात करता है, कॉम्पनसेशन देने की बात करता है, उसी सिटीजन चार्टर को हमें गुड सिटीजन चार्टर कहते हैं. पॉइंट क्लियर हो गया सबका यहाँ पर, तो जल्दी से बताएं. सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिटीजन्स चार्टर. बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ओके, and then to save the time of both customer and service provider, and have clear targets for all levels of services at every level. For example, when you purchase goods on Amazon, जब आप Amazon पे goods purchase करते हो, क्या होता है, that they also give you the time frame. Right now goods have been dispatched, now they are being packed, now they have reached the destination, now they are on their way to your house, right? तो ये सारे टाइम फ्रेम भी पता चलते हैं ना जब Amazon से गुड्स खरीदते हो, ठीक है. और आप क्या करते हो, व्हेन यू आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम जोमैटो, जब आप जोमैटो से, ठीक है, गुड्स कोई भी प्रोडक्ट खरीद, कोई भी मील खरीदते हो, इफ यू आर ऑर्डरिंग एनी फूड आइटम फ्रॉम जोमैटो, दे विल कीप यू इन्फॉर्म्ड. नाउ द राइडर हैज दे विल गिव यू अ मैप शोइंग द राइडर कि अब कहाँ पहुंच गया है राइडर, ठीक है, कितना दूर है, 30 मिनट्स लेफ्ट, 20 मिनट्स लेफ्ट. सो दिस इज द क्लियर टारगेट ऑफ ऑल लेवल ऑफ सर्विसेज कि मतलब आपने लोकेशन वाइज सर्विस भी प्रोवाइड की है. ये नहीं कि बेचारा कस्टमर वेट कर रहा है बैठ के कब आएगी चीज. द कस्टमर इज नॉट वेटिंग aimlessly. The customer knows because of you only, because of the service provider only, the customer knows now I will be getting my goods in 20 minutes, in 15 minutes, in 30 minutes. Okay, so this is clear, having clear targets for all levels of services. That is the next important objective. Okay, now what are the features of citizens charter. अब citizens charter के features क्या हैं. First of all, they will give you the standard for the delivery of services. वो आपको बताएंगे कि ये हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है. वी पैक योर गुड्स, वी सैनिटाइज देम, एंड एट एवरी स्टॉपेज वी विल कीप यू इन्फॉर्म्ड. हर स्टॉपेज पे अभी ये माल आपका डिस्पैच हुआ, अभी पैक हुआ, अभी आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है, हम आपको इन्फॉर्म्ड रखेंगे. देन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज इट विल टेल यू अबाउट द फीचर ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू आर परचेजिंग. ठीक है, आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसका फीचर क्या है,
what is the manufacturing date, expiry date, or when was it manufactured, or what are the controls that were kept in mind while manufacturing it, what is the company who is manufacturing, all the feature of the products, what does the product do, how can you operate the product, everything is listed in the user manual. ठीक है, and it will give you choice also between different products. एक ही आपको चीज, कैटेगरी की चीज चाहिए, पर्स खरीदना है, तो उसमें भी आपको 10,000 कंपनीज के ऑप्शंस मिल जाएंगे. देयर विल बी नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर वन आइटम दैट यू वांट टू परचेज. ठीक है, एंड प्लस इफ यू वांट टू रिफंड द प्रोडक्ट दे विल गाइड यू फॉर दैट ऑल्सो. अगर आप रिफंड करना चाहते हो प्रोडक्ट को, उसके लिए भी आपको गाइड किया जाएगा. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ सिटीजन्स चार्टर. ये आपके सिटीजन्स चार्टर का, ठीक है, फीचर्स होते हैं, और ये आप ध्यान में रखिएगा. ठीक है, कीप दीज फीचर्स इन योर माइंड. पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क फ्रॉम सिटीजन्स चार्टर. अब इसमें से जीएस पेपर 2 में क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज सिटीजन्स चार्टर एक्ट. अब सिटीजन्स चार्टर एक्ट इन इंडिया रेगुलेट्स द सिटीजन्स चार्टर. ठीक है, पहले हम वही पढ़ लेते हैं. लेट्स स्टडी अबाउट द सिटीजन्स चार्टर एक्ट. व्हेन वी टॉक अबाउट सिटीजन्स चार्टर एक्ट, so it is mentioned that if the Citizens Charter Act is, or you can say the Citizens Charter, it is violated. जब Citizens Charter को violate किया जाता है, you can go to the court. ठीक है, आप कोर्ट में जा सकते हो आराम से, and you can file your complaint against it. आप उसके against complaint फाइल कर सकते हो. The 6 principles of Citizens Charter that we discussed, if they are violated, then also you can go to the court. तब भी आप कोर्ट में जा सकते हो. ठीक है, यू हैव द लिबर्टी कि आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो. सेकेंड पॉइंट समझ आ गया सभी को? एंड देन ऑन दी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडर दिस एक्ट इट इज लिस्टेड दैट दे विल कॉम्पनसेट यू इफ दे हैव कॉस्ट यू एनी काइंड ऑफ डैमेज. अगर किसी तरीके का डैमेज आपको हुआ है उनकी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, तो दे विल कॉम्पनसेट यू ऑल्सो. आपको कॉम्पनसेट भी किया जाएगा. पॉइंट क्लियर हो रहा है यहां तक सभी को? ठीक है, जल्दी से बताएं अगर पॉइंट क्लियर है. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाई इज द सिटीजन चार्टर इंपॉर्टेंट. सिटीजन चार्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट? जल्दी से बताओ. व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? टू मेक श्योर दैट द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर satisfied. To make sure that the company's commitment towards fulfilling the needs of the citizen is honest. ठीक है, तो होता क्या है कि सिटीजन चार्टर जब आप तैयार कर रहे हो तो सिटीजन्स का विश्वास ले रहे हो आप. यू आर ट्राइंग टू मेक द सिटीजन्स ट्रस्ट ऑन योर कंपनी एंड योर प्रपोजल्स, ऑन योर प्रोमिसेस, ऑन योर वर्ड्स. इफ दैट इज ब्रोकन देन द सिटीजन्स विल नॉट बी सेटिस्फाइड. मान लो गवर्नमेंट आपको पेंशन स्कीम से रिलेटेड कोई प्रॉमिस करती है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती, तो लोगों का भरोसा गवर्नमेंट से उठ जाएगा. So to make sure that we are tapping the trust of the citizens, this citizen charter is important. Now next part of the question, discuss and suggest measures that need to be taken to improvise upon the efficiency and effectiveness of citizen charter. तो इसके अंदर आप यही पॉइंट समझा सकते हो जो मैंने आपको समझाए हैं. ठीक है, कंपोनेंट्स वाले पॉइंट. एक सिटीजन चार्टर जो है, ठीक है, आप कैसे मेक श्योर कर सकते हो कि ये सिटीजन्स की नीड्स को पूरा करता है, ये एफिशिएंट है, इसमें इफेक्टिवनेस है. इन components के थ्रू, these are the components which can help you to make a good citizens charter. ठीक है, which can help you to improvise the citizens charter. क्लियर हो रही है यहां तक बात सभी को? So everybody can attempt this question then. सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. Okay, so this was all about the citizens charter that we studied today. ये क्रैश कोर्स ऑन गवर्नेंस का सेकेंड लास्ट आपका क्लास था. ठीक है, now the third last class will be on the last class will be on December 19. आपकी जो लास्ट क्लास होगी ना गवर्नेंस की, अब December 19 को होगी सेम टाइम पर. ठीक है, एंड दिस क्लास PDF I will upload it right now on my Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. ठीक है, इस क्लास का ये जो PDF है ना, मैं एज इट इज, ठीक है, मैं इसको अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल Simplifying UPSC with Ease पर. ठीक है, and if you want to subscribe to Unacademy Plus, then you can use this code Sharma20 to get 10% discount. I am taking classes on history on Unacademy Plus. ठीक है, so you can use this code Sharma20 to subscribe to Unacademy Plus. On this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone.